How are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing. And our today's topic is nothing but the second part of vector addition. In the first part of vector addition, we will read about triangle law of vector addition. At first, recap this. Triangle law. See, if we will join two vectors by one's head and another tail, then if this is the two side of a triangle, then the third side of the triangle represents and taken in opposite order, it is the resultant. If this is a vector A, this is the vector B, then the resultant R is equals to vector A plus B. And we also find the magnitude of the resultant, which is R square is equals to A square plus B square plus 2AB cos of theta, where theta is the angle between two vectors. And for finding the angle or direction of this vector, this is the magnitude, and finding the direction the vector, we can find tan theta is equals to B sin theta divided by A plus B cos theta. Similarly, if we take in tan alpha, मतलब हम एक इससे B के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, आप A के रेस्पेक्ट में, tan थीटा इज इक्वल्स टू A sin थीटा, B के रेस्पेक्ट में हो रहा है A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा. चलो, दिस आर द फॉर्मूलाज वी विल फाइंड. आज भी फॉर्मूलाज सेम रहेंगे, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट हो जाएगा. For today's lecture, we will read about the vector addition का second part, and we will read about the parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. The parallelogram law of vector addition. What the parallelogram vector laws of vector addition says? If we will take a vector A and take a vector B, but here I will join the vectors tail to tail. तो पहला जो point है, the first point is here we join two vectors by tail to tail. In the triangle law, we will read that हम क्या कर रहे थे, दोनों वेक्टर्स को एक का हेड और दूसरे का टेल के साथ ज्वाइन कर रहे थे. चलो, now if we will complete the parallelogram, then it seems like this. Then the resultant is the diagonal. The resultant is the diagonal of the parallelogram. ये जो मैंने parallelogram ड्रॉ किया, इसका जो डायगोनल है वो होगा हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट. ओके, तो इस साइड अगर B है, इस साइड भी B, इस साइड A है तो इस साइड भी है. चलो यहाँ पे B लिखते हैं. यहाँ पर मैं ऐसा लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एंगल थीटा, ये थीटा. ये कुछ ट्राइंगल लॉस ऐसा दिख रहा है ना, बिकॉज वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं. We will shift vectors parallelly. तो इस V वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये B आ गया, तो ये क्या ट्राइंगल लो बन गया. यस, तो ये वाला कंपोनेंट होगा B cos थीटा, ये वाला हो जाएगा B of sin थीटा, B sin थीटा. नाउ यू कैन इजीली डिराइव दिस. ये बन गया एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हमारा R है. R इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर मीन्स A प्लस बेस का स्क्वायर मतलब A प्लस B ऑफ cos थीटा का स्क्वायर प्लस B ऑफ sin थीटा स्क्वायर. सो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा प्लस B ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. R square is equals to A square
प्लस बी स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सेम वे से मैं कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, so you can put this value here, this is into 1 plus 2ab cos of theta, or you can write r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta। चलो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, r is equals to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो, अब डायरेक्शन निकालना होगा। हाउ कैन वी डिफाइन द डायरेक्शन? यस, tan थीटा करके। tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको पकड़ो, इस ट्राइंगल को, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस b sin थीटा डिवाइडेड बाय, अगर ये अल्फा है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये टोटल थीटा था, तो अगर ये अल्फा है और मान लो ये बीटा है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब मान लो रिजल्टेंट ए के रेस्पेक्ट में मैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। अब tan बीटा मतलब इस बीटा के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, दिस इज a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा। अगर हम इनवर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्टली, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। बीटा करेंगे तो tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा। ये हमारे पास एक आ गया, ये दूसरा, और तीनों फॉर्मूले हमने सीखा। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड अल्फा, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, एंड tan बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan b सिर्फ बीटा, अगर tan बीटा होता तो क्या हो जाता है, a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस cos थीटा। ये थीटा होगा क्या एंगल? नहीं, अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा। चलो थीटा ही कर देते हैं, ये हो गया आपका अल्फा, ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा बीटा। दिस इज अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लो एक वेक्टर है, दो वेक्टर है ऑफ 5 न्यूटन ऑन ईस्ट, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन ऑन वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। चलो, तो इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है। हम कैसे निकालेंगे भाई? पैरेललोग्राम, आज हम पैरेललोग्राम पढ़े हैं तो पैरेललोग्राम से ही निकालते हैं। चलो, तो वेक्टर गिवन है क्या, एक 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट, डायरेक्शन बनाओ, चलो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऑफ साउथ। चलो, ये हो गया चारों डायरेक्शन। अब बोला है क्या, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट, मतलब यहाँ पे 5 न्यूटन है, और एक वेक्टर है 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। तो इसका अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्टेंट ये बनेगा, ये सुनो बताओ, यस ऑफ कोर्स बनेगा। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली फॉर्मूला, यहाँ पे 90 होगा, एंगल तो 90 है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, बिकॉज एक ईस्ट में जा रहा है एक नॉर्थ में जा रहा है। चलो, तो क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 5 इंटू b इंटू 10 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या है पता है? ये सुनो बताओ, यस पता है, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 प्लस 0, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो रहा है आपका रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट कहां से जाएगा, देखो
ये अगर ऐसा हो तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 125 ऑन नॉर्थ ईस्ट। यस, दिस आवर आंसर। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, चलो। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मान लो मैं कुछ बता रहा हूँ, दोनों वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर्स, दोनों हैं टू वेक्टर्स, फर्स्ट इज 5 न्यूटन ऑन वेस्ट, 5 न्यूटन ऑन वेस्ट, एंड सेकेंड इज 5 नहीं, चलो 10 न्यूटन लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं समथिंग ले लेते हैं, चलो 5 6 7 8 9 10 15 न्यूटन ऑन वेस्ट लिया है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम लिखेंगे इसके साथ ही एंगल ऑफ 60 डिग्री क्या है, एंगल गिवन है 60 डिग्री और यह है 5 न्यूटन। चलो उसको छोड़, डायरेक्शन छोड़ देते हैं। अब डायरेक्शन को छोड़ दिया हमने, हम क्या किया, मैंने 60 डिग्री एंगल पता किया। एक हो गया हमारे इधर 10 न्यूटन, दूसरा हो गया यहाँ पे 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। पैरेललोग्राम अगर हम ऐसे कंप्लीट करें तो ये जो डायगोनल है ये हमें क्या देगा, द रिजल्टेंट। चलो तो कैसे करेंगे, फिर से फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू हाफ, मतलब cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 प्लस ये होगा आपका 100 इंटू हाफ। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 50 हो जाएगा, ये 100 प्लस 25 प्लस 50, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 175 175, ये होगा रिजल्टेंट। अब ऐसे प्रॉब्लम्स आता है, आप देखते हैं परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन वेक्टर का, और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो वेक्टर एडिशन में हमें सबसे ज्यादा काम होता है, जहां पे हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, वी विल ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, वहां पे हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन का। और पॉलीगन लॉ भी है, पॉलीगन लॉ भी है। पहले पॉलीगन लॉ का एकदम शॉर्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, चौथा वेक्टर डी, पांचवा वेक्टर एफ, ये ई है, एफ ऐसे है, ये होगा जी। अब जो एच होगा ये रिजल्टेंट होगा, मतलब क्या बता रहा है, तो एच वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी प्लस वेक्टर ऑफ डी प्लस वेक्टर ऑफ ई प्लस वेक्टर ऑफ एफ प्लस वेक्टर ऑफ जी। दिस इज पॉलीगन लॉ। ये क्या है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ये सिंप्लीफाई करके ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है, पॉलीगन लॉ हो गया छोटा सा टॉपिक, बाद में इसको अगर ज़रूरत होगा तो बोलूँगा। देखो मेन टॉपिक है होगा, नेक्स्ट मेन टॉपिक इज परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन। ये मैंने पहले 1-2 बार बोला है आई थिंक। देखो एक वेक्टर है, जो वेक्टर है ए, ये कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के ऊपर है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के ऊपर। तो इसका दोनों कंपोनेंट हमें पाना है,
दोनों कंपोनेंट इसका है। एक होगा जो थीटा साइड एंगल है, इस थीटा साइड जो है कंपोनेंट, द कंपोनेंट एट थीटा साइड इज ए कॉस थीटा। ये रिमेंबर, ए कॉस थीटा, जो थीटा साइड है मतलब जो थीटा के ओर है इस साइड वो होगा ए कॉस थीटा, और दूसरा होगा ए साइन थीटा। चलो, तो अगर हम इसको ऐसा ग्राफिकली देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या हम लिखेंगे ए वाई, और ये फिर आर दे दो, ये अगर आर दोगे तो ये अच्छा लगेगा दिखने में, और ये भी चलेगा। चलो आर, तो आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, यस और नो? ऑफ कोर्स आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये याद रखना। अब अगर इन दोनों कंपोनेंट को हम जोड़ेंगे तो हमें फिर वापस से यही वेक्टर आएगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एक्स आर वाई इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा है मान लो, ये टोटल 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं जरूरत है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चलो ओके, और क्या, ये था हमारा अबाउट परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन। ये याद रखना आप, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, बिकॉज वाई डायरेक्शन के ऊपर है, मतलब वाई वाले यहाँ पे है आर साइन थीटा, इधर है आर कॉस थीटा। दोनों का अगर हम जोड़ेंगे मतलब दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। आज हर और कुछ नहीं पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर और एक स्पेशल केस देख लेते। चलो, अगर मान लो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर इस साइड एक वेक्टर इस साइड, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ का जो 90 का वैल्यू है 180 हो जाएगा, और cos 180 क्या वैल्यू क्या है? माइनस cos 180 माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा। दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस हो जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ cos, जब थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री, और कुछ नहीं है। पॉलीगन लो हम बाद में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट से, मैंने सिर्फ टच दे के रख दिया है। ये हो गया हमारा, ये 2D के लिए ऑफ कोर्स, दिस इज फॉर 2D। तो आप यहाँ पे 2D अगर सरफेस है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, दिस इज आई कैप जे कैप, आप यहाँ पे ये लगा सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू, रिप्रेजेंट अगर करना है तो आर एक्स आई कैप आर प्लस आर वाई जे कैप, ये भी आप फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, चलो, सो दिस इज फॉर टुडे। होप you are enjoying this lecture. If you are liking this video, then please share to friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you, bye bye, and till then watch Devji Sir of Physics. Thank you.